کہ کیوں نکالا گیا؟ آج پھر پوچھتا ہوں میں، کیوں نکالا گیا بھائی؟ کیوں بولو کیوں؟ پاکستان چاہیے جو غربت سے آزاد ہو. اگر حکومت مل ہی رہی، اللہ نے ہمیں حکومت عطا فرمائی، تو میں نے وہاں پر نہیں بیٹھنا اسلام آباد، نہ ہی میں نے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنا ہے. اگر ایسا موقع آیا تو مجھے اور شہباز شریف کو آپ اس شہر میں، پاکستان میں، بازاروں میں، گلیوں میں، دیہاتوں میں انشاءاللہ اپنے کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے ہوئے دیکھیں. اگر خدمت کرنی ہے پاکستان کی تو پھر ایسے ہی کرنی ہے. میں یہ نوجوان کو یہاں پہ دیکھ رہا تھا، بار بار نعرے لگا رہا تھا. یہ کپڑوں سے مجھے ایک غریب آدمی نظر آتا ہے. کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں اس بچے کو، اس نوجوان کو. کتنی عمر ہے؟ 52 سال. اچھا، میں تو سوچا تھا کہ میں اس کو بہت سالوں سے دیکھ رہا ہوں. یہ 52 سال، میں تو 22 سال سمجھ رہا تھا. تو انینز کا بھی یہی حساب ہے. اور انین جو ہے وہ بھی انین، میں بھول گیا ترجمہ کیا ہے، پیاز. وہ قیمہ جو ہے وہ اب میں پوچھنا چاہ رہا تھا، میں ابھی تک بتایا نہیں کہ وہ کتنا قیمہ ہونا چاہیے. نہ آپ نے اس کا وزن بتایا ہے، نہ یہ بتایا کہ بڑا قیمہ ہونا چاہیے، چھوٹا قیمہ ہونا چاہیے. کیا قصور ہے میاں محمد نواز شریف کا؟ He's stupid. Sorry? Sir, please don't use that word. No, He's the Prime Minister. he's got brain. He's got a hurricane running through the top of his head. If he's going to react like this. دیکھیے، بات یہ ہے کہ مقصد پاکستان کو آگے بڑھانا ہے یا اپنے میں دوبارہ کرتا ہوں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، پاکستان کو ان مسائل سے نکال. آپ سب لے جائیں، آپ لے جائیں، سب لے جائیں. آپ ابھی آپ سب لے جائیں. میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لے جائیں سب. ہاں، آپ کیا بات ہے، آپ ذاتیات پہ آپ آ رہے ہیں. یہ دس از ناٹ اے فیئر کوشچن. انشاءاللہ یہ ایک چھوٹا سا طوفان ہے. طوفان تو نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی میں نہیں کہنا چاہتا. ذرا ایک منٹ روک لیں. کیا کہنا چاہیے؟ ایسی بس ایک ہنگامی کیفیت تاریخ ہے، یہ ختم ہو جائے گی. اس کو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش اللہ کے فضل سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے اگر اس کردار سے اگر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی حصہ یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں گھنٹے میں 4.5 گھنٹے میں 5 میں وہ لاہور سے اگر آپ پہنچتے ہیں وہاں پہ سیمنٹ فیکٹری لگائی. اور ایک اور بھی صاحب تھے تو ہم نے وہاں خریدے، ڈال دیے. تو میں نے اپنا Our friendship is higher than the Himalayas and deeper than the deepest sea in the world, and sweeter than honey. Thank you very much. Thank you, Mr. President, for your gracious invitation and the warm welcome accorded to me and members of my delegation. Thank you for your... Ladies and gentlemen of the press, I thank you once again and look forward to welcoming you and Mr. Obama, Mrs. Obama. I thank you once again and look forward to welcoming you and Mr. Obama, Mrs. Obama. How important are solving these problems to your country's economic future? Pardon me? How important are solving these problems to your economic future? It's very important because That prosperity for the region does depend on being at peace, not at war, but certainly there are other major issues and challenges. Let's talk about job creation and poverty in the region. Business in addition to getting jobs. Are there some interesting
efforts underway there. Yeah. So, been the right way to go. I've just answered your question earlier, but I said So, been the right way to go. I've just answered your question. सर्दी नहीं लग रही, गर्मी लग रही है, और मेरा ख्याल है कि सर्दियों का ये सर्द तरीन दिन है आज। और कल टेलीविजन भी बता रहा था कि सिंध में भी बड़ी सर्दी है और सिंध में सर्दी की लहर आई हुई है। मेरे पास मफलर था, मेरा मफलर जो होता है जो पहनते हैं वो मैं लेकिन वो पीछे पड़ा हुआ है, वो मैं दिल कर रहा था मैं उसको पहन लूं क्योंकि हवा चल रही है ठंडी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब यहाँ पर मेरे भाई साहब ने मुझे ये अजरक पेश किया। मैंने कहा मेरा तो मफलर मुझे मिल गया है, और मैंने मफलर भाई नहीं, देखो देखो कौन आया, पता है यार, नवाज शरीफ आया है। तो मैंने वो मफलर मेरा वो पीछे पड़ा हुआ था, तो मैंने फिर इसको मफलर के तौर पे इस्तेमाल किया। तो और आपको भी लग रही, मैं इतना सच बोलना सीखो यार, आइंदा सच 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 ऐसे अपना वो जो बैलेट पेपर होता है, बैलेट पेपर जानते हो कि नहीं जानते? वो पीछे वाले लोग जानते हैं कि बैलेट पेपर किसे कहते हैं? तो ठप्पा जो लगता है, ठप्पा, तो ठप्पा अगर सही लग जाएगा ये मुल्क सही हो जाएगा। चले 100% का बदल सकते, 50% तो बदल। अगर बिजली आज भी लोड शेडिंग का शिकार है, लोड शेडिंग हो रही है मुल्क के अंदर, भाई उसमें कुछ तो बेहतरी आती, वो पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। क्या कसूर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का? He's stupid. Sorry, sir, please don't use that word. No, He's the Prime Minister. he's got brain. He's got a hurricane running through the top of his head. If he's going to react like this, जो है वो कायम किया है, उस तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लाहौर इज डस्टी, लाहौर इज डर्टी, लाहौर जो है उसके अंदर आप एंटर हो, वो इस्तांबुल वाली लुक नहीं है मियां साहब। आप हजूर पैसे आप दिला दें, इंतजाम आप कर दें, वफाकी हुकूमत से आप कहें। Iqbal sahab, please don't interfere. I'm very sorry. I have to insist on this. Please don't do this. मैं उस तरफ आ रहा था। This is your party chief. मैं उस तरफ आ रहा था। I'm very sorry. This is unfair. He's handling it very well, and I have to represent this. Go on, Mian sahab. अमेरिका से कहेंगे कि नो फॉर ड्रोन अटैक्स और वो बंद कर देंगे। मेरा ख्याल है कि जब आप सीरियसली इस मामले को टेकअप करेंगे और वो भी पता उनको लगेगा कि इन्हीं पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो संजीदा है, वो बात समझेंगे। But I'm sure there's somebody back there that's really nervous right now. Don't you think? पाकिस्तान के एक बड़े अहम लीडर टीवी पे बैठ के कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे, सही, वो थूक से सबे उलट रहे थे ऐसे। बिजली पैदा करने वाले सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गाजी बरोता की बुनियाद हमने रखी। पूरी कौम को ये क्या बता रहा है? थूक से सबे उलटना, ये ग्रूमिंग है। एजुकेशन, तालीम, तरबियत और ग्रूम। मियां नवाज शरीफ की आमद से पहले साद रफीक फोन पर किसी से बातों में मसरूफ थे तो मारवी मेमन और माइजा हमीद एक दूसरे से खुशगप्पियों में मशगूल थीं। वहीं मौजूद वफाकी वजीर दानियाल अजीज शायद अभी लंच करके पहुंचे थे तो दांतों का खलाल करते हुए पाए गए। मियां नवाज शरीफ पंजाब हाउस की पहली मंजिल से सीढ़ियां उतरकर न्यूज कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे। साबिक वजीर आजम का चेहरा उतरा हुआ था। आते हुए उन्होंने एक लिखा हुआ बयान पढ़ना शुरू कर दिया। मियां नवाज शरीफ ने अपनी सुनाई और ये जा वो जा। जब उनकी तकरीर शुरू हुई और नौजवानों ने जलसा गाह में खड़े होने की कोशिश की तो मियां साहब परेशान हो गए और उठती यूथ को बिठा दिया।
ये यूथ एक नया पाकिस्तान बनाएगी, वो नया पाकिस्तान जिसका ख्वाब मैंने 1990 में देखा था। ये नीचे करें भाई, नीचे करें। ये फिर यूथ विंग वाले क्या कर रहे हैं? यूथ विंग वाले नीचे करें, नीचे। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मक्खियों ने मियां साहब के नाक में दम किए रखा। मक्खी से जान छूटी तो गर्मी के मारे मियां साहब बार बार पानी पीते नजर आए। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद नवाज शरीफ ने हिम्मत न हारी और हुकूमत पर हमले जारी रखते हुए कहा कि रोज रोज वजीर आजम की बातों का जवाब देना अच्छा नहीं लगता। मुबस्सिरीन के मुताबिक नवाज शरीफ के पास अब शायद कुछ कहने के लिए नहीं। भाई लोधरा के अवाम, भाई किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? आपका मुंह है चूमने को। भाई साहब पीछे आ जाओ। भाई बस ठीक है, मेरी बात सुनो। अब अभी नहीं, बस ठीक है, फिर बात नहीं होती। इन सबको इंशाल्लाह जितने भी गरीब लोग हैं उनको उनके दरवाजे की दहलीज तक इंसाफ मिलेगा। शहबाज शरीफ साहब जगह जगह जाके हेल्थ कार्ड दे रहे हैं ताकि गरीब लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत मिल सके। लेकिन क्या करें? बस ठीक है। मैं सच बताता हूं आपको, सच, और सच बोलता हूं कि झूठ की आदत नहीं मुझे। और आप जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता अल्लाह के फजलो करम से। जो है वो हेल्थ के फील्ड में अस्पताल बन रहे हैं। अभी रास्ते में आते हुए हमने कई अस्पताल देखे हैं। मैं व्हील चेयर पर जो लिया ना, बकरी बेच कर लिया व्हील चेयर भी। भाई बस ठीक है, मेरी बात सुनो। अभी नहीं, बस ठीक है, फिर बात नहीं होती। देखो मेरे बच्चे, देखो यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं। यार ये हमारे साथ रहेगा, ये तालीम करेगा क्या? मगर इलाज हो जाएगा तो ये पड़ेगा ना। और हम देख रहे हैं कि बस एक मिनट भाई, एक मिनट प्लीज एक मिनट। क्या है उसको? क्या है? क्या उसके साथ धर्म है? क्या उसके घर में कुनी पकती है या नहीं पकती? जलसा लाहौर दा, मजमा पेशावर दा, एजेंडा किसी और दा। ये जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, जो हेलीकैन क्या कहते हैं इनको, ड्रोन उड़ रहे हैं, इनको हिम्मत नहीं हो रही कि नवाज शरीफ के करीब आए। ये हरिपुर में मेरे सर से गुजर रहे थे, तो मैं वहां पे जब एक दफा गुजरा मैंने ऐसे देखा, दूसरी दफा गुजरा फिर मैंने ऐसे देखा, ये आ रहा है, ये बढ़ रहा है मेरी तरफ। परे हो जाओ भाई, परे हो जाओ। लेकिन मैं वैसे नहीं कर रहा जैसे मौलवी तारुल कादरी ने किया था। याद है आपको क्या किया था? ऐसे किया था ये नहीं किया था? ये आ रहे हैं पाकिस्तान सियासत करने के लिए, ये आ रहे हैं हमारी हुकूमत को हटाने के लिए। लेकिन मैं वैसे नहीं कर रहा जैसे किसने, मौलवी तारुल कादरी ने किया था। याद है आपको क्या किया था? ऐसे किया था या नहीं किया था? आज मेरे सामने आने की जरूरत ना करो। मैं इससे पूछना चाहता हूं, मैं इसको कई सालों से देख रहा हूं, इस बच्चे को, इस नौजवान को। कितनी उम्र है? 52 साल। अच्छा, मैं तो सोचा था कि हाँ, मैं इसको बहुत सालों से देख रहा हूं। ये 52 साल, मैं तो 22 साल समझ रहा था। अब आज चार्ज ये आ रहा है मुझ पे, एलिगेशन कि जी वो तनख्वाह तो लगाई थी, तनख्वाह वसूल क्यों नहीं की? वसूल क्यों नहीं हुई?
कुछ वसूल करो तब मुसीबत है, कुछ ना वसूल करो तब मुसीबत है। ये आप देख लें, अगर तो आप की सूझबूझ और आपकी फहम फरासत और अक्ल फहम आपकी इस बात को कबूल करती है तो फिर तो मैं मुजरिम हूँ। सिर्फ इस बात पे निकाल दिया कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। अब मुझे जरा सबूत दे के बताओ, जो लोग इस फैसले को जो तस्लीम करते हैं वो हाथ खड़ा करें। समझते नहीं। वाह 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 वाह। समाज के अवाम के लिए नारा लगाने को दिल करता है नवाज शरीफ का। जो तस्लीम करते हैं वो हाथ खड़ा करें। समझते नहीं। वाह 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 वाह। समाज के अवाम के लिए नारा लगाने को दिल करता है नवाज शरीफ का। मेरे नूरो जिंदाबाद। मुझे क्यों निकाला गया, आज फिर पूछता हूं मैं, क्यों निकाला गया भाई? क्यों 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 बोलो क्यों?